how different types of groups, they may be electron donating group or they may be electron withdrawing group, how they affect electrophilic substitution reaction in aromatic compound, how they affect electrophilic substitution reaction in aromatic compound, right? This is our discussion. This is part of our today class, right? So you can see, first of all, if suppose that electron withdrawing group attach at benzene ring, right? And that electron donating group, suppose that OH group, right? That electron donating group, suppose that OH, right? So then you can see here, right? This OH give one lone pair of electron. This OH give one lone pair of electron to benzene ring, right? And then this pi bond convert into, then this pi bond you can see convert into a negative charge. You can see then that pi bond convert into a negative charge, right? So this is a very simple, you can see, if electron donating group like OH group attach at benzene ring, then this lone pair of electron convert into pi bond, right? And then at oxygen positive charge, you can see, then at oxygen positive charge, because of one lone pair of electron convert into bond pair of electron, and after that, right, this pi bond convert into negative charge. So you can see here at this carbon, इस कार्बन पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस ऑक्सीजन पे आपका प्लस चार्ज आ जाता है, बिकॉज ऑक्सीजन का एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड देन दिस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, राइट? And after that, you know, if the group like this is a benzyl group, right? Because if this group attach here, right, so it's like, then this negative charge can rotate, right? Then this negative charge can rotate, you can see, right? So negative charge rotate, right? If negative charge convert into pi bond, you can see here, then this pi bond convert into negative charge, right? So first negative charge come at ortho position, and then in second case this negative charge convert into this pi bond convert into negative charge, and negative charge come at para position, right? After that, this negative charge convert into pi bond, you can see now the pi bond come between these two carbon, right? And then this pi bond convert into negative charge, ortho position. It means at 2 ortho and 1 para position high electron density. It means at ortho and 2 pi electron, at ortho and 2 you can say at ortho and para position, right? High electron density, at ortho and para position high electron density, right? So this is region if electron donating group, right? This is region if electron donating group present at benzene ring, then high electron density at 2 ortho and 1 para position, 2 ortho and 1 para position. And this is reason why electrophile always attack at ortho and para position, right? तो कहने का अर्थ ये हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग पर होता है तो फिर क्या होता है? तो फिर ये होता है कि जो ऑर्थो पोजीशंस होती हैं और जो पैरा पोजीशन होती हैं उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है, उस पर क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाती है. और जब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाती है तो जो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग, इट मींस दैट ऑलवेज अटैक एट दैट पोजीशन वेयर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. हमेशा वो उस पोजीशन पर अटैक करेगा जहां पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, राइट? और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देख सकते हो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो वो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही अटैक करता है, राइट? तो दिस इज one of the important thing. If already substituted group attach at benzene ring, if already substituted group attach at benzene ring and that is electron donating in their nature, then coming electrophile always attack at ortho and para
पोजीशन, राइट। तो जब कभी भी बेंजीन रिंग पर पहले से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है वो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आता है, क्योंकि वहां पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और इलेक्ट्रोफाइल तो चाहता ही वही पोजीशन है जहां पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। नाउ आफ्टर दैट यू कैन सी, इसको थोड़ा और इजीली और अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि ऐसा क्यों होता है, राइट। ऐसा क्यों होता है, अगर आप इसको और अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो यू कैन सी हियर, राइट, यू कैन सी हियर दिस केस। इफ सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टॉलिन, अगर हम टॉलिन के बारे में बात करते हैं और हम टॉलिन के नाइट्रेशन के बारे में बात करते हैं, राइट। तो जब नाइट्रेशन होगा टॉलिन का तो आप देखिए कैसे कैसे करके उसका नाइट्रेशन होगा। सबसे पहले देखिए नाइट्रो ग्रुप के पास तीन ऑप्शन है, आइदर दे अटैक एट ऑर्थो पोजिशन और दे अटैक एट मेटा पोजिशन और दैट अटैक एट ऑर्थो पैरा पोजिशन, राइट। तो three things, right, either they go at ortho position or they go at meta position or they go at para position, right। तो किस किस पोजीशन पे वो अटैक कर सकता है, इन तीन पोजीशन पे वो अटैक कर सकता है। अब बात ये होगी किस पोजीशन पे करेगा। नाउ थिंक, इफ नाइट्रो ग्रुप अटैक एट दिस पोजीशन ऑर्थो पोजीशन, इफ नाइट्रो ग्रुप अटैक एट दिस पोजीशन, अगर नाइट्रो ग्रुप इस पोजीशन पर अटैक करेगा तो सोचिए फिर क्या होगा। आप देखिए ये जो प्लस चार्ज होगा ना ये कहां जाए, क्योंकि ये बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड था ये सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज नाउ दिस पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, राइट। जब पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो आप सोचिए आप, राइट, ये पोजीशन जो है इस कार्बन पे क्या जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। वेरी सिंपल, राइट। इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, आपका प्लस चार्ज आ जाएगा, राइट। उसके बाद आप देखिए अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, बिकॉज यू पीपल ऑलरेडी नो दिस कंपाउंड ऑलवेज गिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये कंपाउंड हमेशा रेजोनेंस स्ट्रक्चर देगा। तो पहला स्ट्रक्चर तो ये बन गया, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। उसके बाद दूसरे स्ट्रक्चर में देखिए क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड इस साइड को रोटेट करेगा, राइट, एंड देन प्लस चार्ज कम एट दिस पोजीशन। हमेशा जो प्लस चार्ज होगा वो थर्ड पोजीशन पे आएगा, राइट। तो अगर उसकी फर्स्ट पोजीशन ये है तो सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे आएगा, राइट। आप देखिए यहां पे आ गया और ये जो पाई बॉन्ड है इन दो कार्बन्स के बीच में आ गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट दिस पाई बॉन्ड मूव इन दिस डायरेक्शन, ये पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव करेगा, देन पॉजिटिव चार्ज वंस अगेन गो एट थर्ड पोजीशन, और फिर क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो थर्ड पोजीशन पे चले जाएगा, यहां से फर्स्ट फिर सेकंड और फिर थर्ड पोजीशन पे, राइट। तो इस तरह से पहले ऑर्थो पोजीशन पे, फिर पैरा पोजीशन पे और फिर ऑर्थो पोजीशन पे आपका प्लस चार्ज आएगा। आप देखिए यहां पे आ गया प्लस चार्ज, राइट। अब आपको सोचना पड़ेगा कि इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हाईली स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है, राइट। तो आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली पोजीशन, बिकॉज दे आर ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, यहां पे पहले से ही सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। अब नाउ थिंक अबाउट दिस कार्बन, नाउ थिंक अबाउट दिस कार्बन, व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ दिस कार्बन, इस कार्बन की प्रॉब्लम क्या है। नाउ वी नीड टू थिंक अबाउट द कंडीशन ऑफ दिस कार्बन, नाउ वी नीड टू थिंक अबाउट द कंडीशन ऑफ दिस कार्बन, राइट। एंड नाउ इफ यू थिंक अबाउट कंडीशन ऑफ दिस कार्बन, इस कार्बन की अगर आप कंडीशंस के बारे में सोचोगे तो इसकी प्रॉब्लम है क्या भाई, इसकी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इस पे एक क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ, राइट। तो अगर इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है इट मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस कार्बन को हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, इट्स वेरी वेरी क्लियर, राइट। इस कार्बन को क्या देगा, वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, और जब वो इस कार्बन को हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और इस कार्बन के पास जब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो इफ पॉजिटिव चार्ज कम एट दिस पॉइंट, अगर पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे आएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे आएगा तो बैलेंसिंग बन जाएगी। तो क्या बन जाएगी, बैलेंसिंग बन जाएगी। बैलेंसिंग कैसे बनेगी भाई,
बैलेंसिंग कुछ इस तरह से बनेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है और ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है, राइट। तो यहाँ पे बैलेंसिंग, इट मींस दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज हाईली स्टेबल, राइट। ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा। बाकी ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है दे आर नॉट हाईली स्टेबल एंड दे आर नॉट अनस्टेबल, राइट। नहीं वो बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल होंगे, नहीं अनस्टेबल होंगे, लेकिन ये वाला जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज हाईली स्टेबल बिकॉज यू कैन सी एट दिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, right? Electron donating group donate their electron and positive charge decrease electron density, right? जो positive charge है वो electron density को decrease कर रही है और जो CH3 ग्रुप है वो electron density को बढ़ा रहा है। It means balancing हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, right? Now think if नाइट्रो ग्रुप अटैक एट पैरा पोजिशन, अगर नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजिशन पे अटैक करता है, अगर नाइट्रो ग्रुप आपका पैरा पोजिशन पे अटैक करता है तो फिर क्या होता है, राइट? इफ नाइट्रो ग्रुप अटैक एट पैरा पोजिशन, यू कैन सी इफ दिस नाइट्रो ग्रुप कम एट दिस कार्बन, राइट। अगर नाइट्रो ग्रुप इस कार्बन पे आ जाए, राइट, तो आप देखिए आ गया इस कार्बन पे, तो ये वाला बॉन्ड जो होगा, ये पाई बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन पॉजिटिव चार्ज कम एट दिस कार्बन, राइट। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा, राइट। नाउ पॉजिटिव चार्ज कम एट दिस पॉइंट, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज अब इस पॉइंट पे आ गया, राइट। नाउ आफ्टर दैट यू पीपल ऑलरेडी नो, अब ये पाई बॉन्ड इधर को रोटेट होगा, राइट। एंड फिर पॉजिटिव चार्ज थर्ड पोजीशन पे, इस पोजीशन पे चले जाएगा। पॉजिटिव चार्ज पहले यहां पे था, फिर पॉजिटिव चार्ज आपका यहां पे चले गया, राइट। देन नेक्स्ट क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अब यहां पे आ गया, राइट। ये पाई बॉन्ड इधर को रोटेट, देन वंस अगेन दिस पाई बॉन्ड रोटेट इन दिस साइड, राइट। पाई बॉन्ड इस साइड को रोटेट करेगा एंड देन पॉजिटिव चार्ज कम हियर, राइट। और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। तो आप देखिए ये तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही है। नाउ यू कैन थिंक देयर आर दीज 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यहां पे क्या हो गए, ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए। अब देखिए इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में प्लस चार्ज कहां पे, यहां पे, राइट। इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में प्लस चार्ज कहां पे, यहां पे, और इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में प्लस चार्ज यहां पे, राइट। तो अब क्या है, इस प्रॉब्लम किस कार्बन पे है सबसे ज्यादा, इस कार्बन पे जिस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। प्रॉब्लम किस कार्बन पे सबसे ज्यादा, उस कार्बन पे है जिस पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, राइट। तो उस कार्बन पे तो प्लस चार्ज आ नहीं रहा है बिकॉज एट दैट कार्बन नो वन प्लस चार्ज कम, राइट। इस कार्बन पे कोई प्लस चार्ज नहीं आ रहा है। दिस इज रीजन यू कैन से देयर इज नॉट हाईली स्टेबल और अनस्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इस बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि मेटा के केस में ना तो कोई स्टेबल और ना ही कोई अनस्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, राइट। Now, after that, you can see next one, right? If suppose that nitro group attack at para position, अगर नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर अटैक करता है, इफ नाइट्रो ग्रुप कम एट दिस पोजीशन देन प्लस चार्ज कम एट दिस पोजीशन। प्लस चार्ज कहां पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा। अब देखो नाइट्रो ग्रुप यहां पे आ गया, प्लस चार्ज कम एट दिस पोजीशन, राइट। आफ्टर दैट आप देखो दिस पाई बॉन्ड मूव इन दिस डायरेक्शन, ये पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो प्लस चार्ज थर्ड पोजीशन पे जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे चली गया, राइट। आफ्टर दैट दिस पाई बॉन्ड रोटेट इन दिस डायरेक्शन, राइट, एंड देन प्लस चार्ज कम एट दिस पॉइंट, राइट। तो ये देखिए दिस resonance structure is highly stable or most stable because at this carbon where high electron density positive charge also, जिस कार्बन पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसी कार्बन पर प्लस चार्ज भी है। तो जब ऐसा होता है तो ये बैलेंसिंग की कंडीशन है। इट मींस नाइट्रो ने इस रिंग को अफेक्ट नहीं किया, इट मींस नाइट्रो नॉट अफेक्ट दिस रिंग, राइट। नाइट्रो ने इस रिंग को अफेक्ट नहीं किया एंड दे फॉर्म ए मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और वो क्या बना दिया उसने, मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बना दिया, राइट। तो इट शुड बी क्लियर, राइट, दैट फॉर्म ए मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। वो क्या कर रहा है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। क्लियर होगी बात क्या, राइट। तो अब आप देखिए
One case is you can see one case is para and second case is ortho, right? Ortho और para दो ऐसे cases हैं जिसमें right most stable resonance formed form, right? जिसमें most stable resonance form बन रही है, right? तो ये दो ऐसी फॉर्म है जहां पे most stable resonance form बन रही है, right? तो इसमें अगर मैं बात करता हूं this and this, right? तो this is reason why if इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच एट बेंजीन रिंग, इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग पर अटैच होती है तो हमेशा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाता है। इट्स अ वेरी एडवांस एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, राइट? ये सबसे एडवांस एक्सप्लेनेशन है उसके लिए कि कैसे करके वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही जाता है, वो मेटा पोजीशन पर नहीं जाता है। यू कैन एक्सप्लेन दैट ऑन दिस बेसिस, राइट? इस बेसिस पे आप उसे क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। यू कैन एक्सप्लेन दैट ऑन दिस बेसिस, राइट? इस बेसिस पे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये इस बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सेम इन केस ऑफ इफ सपोज दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऐसे आप एक्सप्लेन करोगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस पोजीशन पे होगा, राइट? सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अगर हम नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन के बारे में बात करते हैं, अगर यहां पर पहले से ही नाइट्रो ग्रुप है और नाइट्रो ग्रुप अटैक करता है तो फिर क्या होगा, एक बार प्लस चार्ज यहां पे जाएगा, एक बार प्लस चार्ज यहां पे जाएगा, एक बार प्लस चार्ज यहां पे जाएगा, राइट? तो 3 टाइप्स ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नाउ इफ नाइट्रो ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट एट बेंजीन रिंग, अगर नाइट्रो ग्रुप पहले से ही बेंजीन रिंग पर एग्जिस्ट करता है, अगर इफ नाइट्रो ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट एट बेंजीन रिंग, राइट? तो फिर क्या होगा, अगर प्लस चार्ज इस पोजीशन पे आ गया तो देन देयर इज ए बिग प्रॉब्लम, फिर वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? बिकॉज यू पीपल ऑलरेडी नो नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन आंचल, डोंट राइट एनीथिंग है, आई एम नोटिंग योर नेम ऑल्सो, राइट? तो जो नाइट्रो ग्रुप है, अगर नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो फिर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, राइट? बिकॉज नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है। तो जब नाइट्रो ग्रुप इस पोजीशन पे ऑलरेडी होगा तो फिर नो प्रॉब्लम बेटा, हाँ चल, राइट? तो इफ नाइट्रो ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट एट दिस कार्बन, राइट, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी कम है और अगर नेक्स्ट नाइट्रो ग्रुप आने से यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर हाईली अनस्टेबल फॉर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी, हाईली अनस्टेबल फॉर्म, राइट? तो पैरा के केस में यहां पे हाईली अनस्टेबल फॉर्म बनेगी एंड ऑर्थो के केस में आप देखिए, ऑर्थो के केस में भी सेम कंडीशन आएगी। ऑर्थो के केस में भी आप देखिए सेम कंडीशन इन ऑर्थो केस आल्सो, राइट? ऑर्थो में भी क्या आएगा, यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा, राइट? तो वहां पे अगर पहले से नाइट्रो ग्रुप है तो प्लस चार्ज भी है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, तो इट मींस दैट कन्वर्ट इनटू हाईली अनस्टेबल फॉर्म। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इसलिए ही हमेशा जो ऑर्थो होता है और जो पैरा होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो नहीं बनता है। ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट नेवर फॉर्म्ड इफ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच एट बेंजीन रिंग। अगर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग पर है तो कभी भी हो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक नहीं करेगा, राइट? देन दे अटैक एट मेटा पोजीशन बिकॉज यू नो इफ हियर नाइट्रो ग्रुप देन प्लस चार्ज कम एट दिस पोजीशन, प्लस चार्ज कम एट दिस पोजीशन एंड प्लस चार्ज कम एट दिस पोजीशन, राइट? तो प्लस चार्ज यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, प्लस चार्ज इस कार्बन पे नहीं आएगी, राइट? तो इसका मतलब है हाईली अनस्टेबल रेजोनेंस फॉर्म नहीं बनेगी। और अगर हाईली अनस्टेबल रेजोनेंस फॉर्म नहीं बनेगी इट मींस फिर पॉसिबल है कि आपका नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रेशन गिव मेटा टाइप ऑफ प्रोडक्ट, राइट? वो क्या करेगा, मेटा टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, राइट? नाउ आफ्टर दैट यू कैन सी नेक्स्ट वन, राइट? नाइट्रेशन, नाइट्रोबेंजीन। इफ वी टॉक अबाउट नाइट्रोबेंजीन, अगर हम नाइट्रोबेंजीन के बारे में बात करते हैं, राइट, नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, तो आप देखो नाइट्रो ग्रुप अगर है तो वो
क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करेगा, देन दिस पाई बॉन्ड कम एट दिस पोजीशन एंड देन पॉजिटिव चार्ज कम एट दिस पॉइंट, यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देन when this bond rotate here, right, तो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, when this bond rotate here then पैरा, right, तो दो ऑर्थो एंड वन पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो दिस इज रीजन always electron withdrawing group invite electrophile at मेटा पोजिशन, राइट। तो इसीलिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को इनवाइट करते हैं मेटा पोजिशन पे, नॉट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे नहीं करते इनवाइट, राइट। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है वहां पे पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा ही नहीं और उसको वहां पे जाने से कोई भी बेनिफिट नहीं। तो दिस इज कंप्लीट अबाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप गिव पोजीशन फॉर कमिंग इलेक्ट्रोफाइल एंड हाउ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप गिव पोजीशन टू कमिंग इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो किस तरह से आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को इनवाइट किया जाता है अलग अलग पोजीशन पे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नाउ दिस is also interesting case, right, when we talk about haloalkene, right, halo aryl halide, right। तो aryl halide की अगर हम बात करते हैं तो ये थोड़ा स्पेशल केस होता है, मैंने पहले भी आपको कहा कि जो Cl होता है या जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो होते हैं वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कंपेयर टू अदर, राइट। तो इसलिए क्या होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं, राइट। ये यहां से इलेक्ट्रॉन को बेंजीन से खींचते हैं, लेकिन बिकॉज 3 lone pair इलेक्ट्रॉन विद बेंजीन सॉरी क्लोरीन के पास क्या है, 3 lone pair ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो दे गिव देयर lone pair ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग, वो अपने lone pair ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग को देते हैं। और जब वो ये इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग को देते हैं, राइट। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल ने जैसे यहां पे अटैक किया, आप देखिए इलेक्ट्रोफाइल ने जैसे यहां पे अटैक किया इस तरह से, उसके बाद देखिए यहां पे क्या गया, प्लस चार्ज आ गया, राइट। अब यहां पे प्लस चार्ज आ गया, अब इसके बाद देखिए बिकॉज Cl इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू कार्बन, सो दे विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर, वो यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, राइट। तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी इस कार्बन के पास, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, वो क्योंकि उसके पास 3 lone pair ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आउट ऑफ 3 दे गिव 1 lone pair ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कार्बन, राइट। तो आउट ऑफ द 3 में से एक lone pair ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो कार्बन को दे देगा, इस Cl पे प्लस चार्ज आ जाएगा और कार्बन और Cl के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट। Now after that you can see, right, this types of structure will form, right। Now after that ये जो होगा वो इधर को रोटेट हो जाएगा, right, then plus charge come at this position and then plus charge come at this position, right। तो कुल मिलाकर के होगा क्या, आप देखिए यहां पे देखिए प्लस चार्ज यहां पे आ गया, उसके बाद इस तरह की कंडीशंस बन गई, राइट, या इस तरह की कंडीशंस बन गई, राइट। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा तो इस तरह की कंडीशन बनेगी, राइट। और अगर वो पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, अगर वो किस पोजीशन पे अटैक करता है, पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, तो देन दे कन्वर्ट इनटू दिस टाइप्स, राइट। तो इस तरह का बन जाएगा, राइट। तो आप देखिए ऐसे बन जाएगा, राइट। तो कहने का अर्थ ये क्या है कि वो प्लस आर इफेक्ट को शो करता है, क्योंकि आपको पता है यहां पे दो इफेक्ट साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं, हियर 2 इफेक्ट आर साइमल्टेनियसली वर्किंग, दो इफेक्ट यहां पे एक साथ काम कर रहे हैं। पहला इफेक्ट क्या है, पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, वीक है कंपेयर टू रेजोनेंस इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो रेजोनेंस इफेक्ट की कंपैरिजन में वीक होता है, इसलिए ही रेजोनेंस वाला क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और इसलिए ही वो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इनवाइट करता है फॉर कमिंग इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो जो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उनके लिए वो जो हेलोजन होता है वो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इनवाइट करता है, बिकॉज दे फील स्टेबल व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, जब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, बिकॉज आपको पता है ये सी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, एंड देन दे कैन गिव दिस टाइप्स ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, देन दे गिव दिस टाइप्स ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दे गिव दिस टाइप, राइट। तो दिस इज पॉइंट व्हाई दे आर डीएक्टिवेटिंग, right, they are deactivating in their nature, you can see,
here in PPT, halogen deactivating yet ortho and para directing, right? Electron withdrawing through inductive effect, right? Electron withdrawing nature होता है इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट, राइट? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है इंडक्टिव की वजह से, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर होता है किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से. रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर इलेक्ट्रो इंडक्टिव इफेक्ट, सो दे ऑलवेज प्रिफर टू गिव ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, राइट? तो इस तरह से वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस को देता है, राइट? तो दिस इज कंप्लीट अबाउट electrophilic aromatic substitution reaction. Now this is complete, right? Now next topic, what about our next topic? This is about nucleophilic aliphatic substitution reaction. मैं टाइम पे आप लोगों को वीडियो भी शेयर कर रहा हूं, राइट? तो आप लोग उन वीडियोस को भी देखिए, राइट? और उससे भी नोट्स बनाइए, राइट? नोट्स कोई वो नहीं होता है जो टीचर आपको प्रोवाइड करता है, नोट्स वो होता है जो आप खुद प्रिपेयर करते हो, राइट? समझ गए? तो नोट्स हमेशा खुद बनाने चाहिए, जो कि आपको एग्जाम की नाइट में पढ़ने में इजी हो. आपने खुद बनाया अगर नोट्स होगा तो आप उसको इजीली पढ़ पाओगे. तो इसलिए मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा हूं, राइट? मैं आपको टीच भी कर रहा हूं. तो आप लोग इसलिए अपना नोट्स खुद बनाने की कोशिश करिए. ये नहीं कि नोट्स मिलेगा और फिर हम कॉपी करेंगे, नहीं, खुद बनाइए ना नोट्स, पढ़िए और खुद बनाइए नोट्स, और आफ्टर that will very helpful to you during your exam, right? So now next point of discussion, this is about nucleophilic aliphatic substitution reaction. Now what about nucleophilic aliphatic substitution reaction? Nucleophilic aliphatic substitution reaction क्या होती है? तो you people already know nucleophilic means their attacking group is nucleophile, right? Aliphatic means we are talking about aliphatic compound, right? Next point, right? Substitution means, you know, substitution means replacement reaction, right? तो जब nucleophile work like attacking reagent, जब nucleophile attack करता है aliphatic compound पे, right? Then after substitution they convert into a substituted product, and then that reaction is called nucleophilic aliphatic substitution reaction. I will explain that in coming PPT, right? These are mainly 3 types according to your syllabus. आपके syllabus के according आप देखोगे तो ये 3 types के हैं, SN1, SN2 and SNI. SNI थोड़ा सा एडवांस है because आपने SN1 और SN2 तो ऑलरेडी पढ़ा होगा, लेकिन SNI आपने पढ़ा नहीं होगा आज तक, right? तो SNI is a little bit advanced. This is also ये जो है SN1, SN2 and SNI, right? तो 3 types of nucleophilic aliphatic substitution reaction. Now if we talk about first and simple nucleophilic substitution reaction, then you can see here 3 important component. जो nucleophilic substitution reaction होती है उसमें 3 important component होते हैं. पहला component क्या होता है? वो होता है substrate. आप देखिए ये, this is substrate, alkyl halide, this is substrate. sp3 hybridized carbon होगा, जैसे क्या हो सकता है? CH3X हो सकता है, जैसे देखिए CH3Cl हो सकता है, C3H7I हो सकता है, या कोई और हो सकता है, C2H5Br हो सकता है, इस तरह से कोई भी हो सकता है, राइट? नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट यू कैन सी, राइट? उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, सेकंड इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल. इट इज एक्चुअली कॉल्ड अटैकिंग ग्रुप. क्या कहते हैं इसका नाम? अटैकिंग ग्रुप, राइट? तो सबसे पहले सबस्ट्रेट होता है, राइट, जो आपका reactant है. Then second is called nucleophile, which is also called attacking group, right? दूसरा आपका attacking group हो गया, और third one is called leaving group, जो निकल जाता है, right? तो इस तरह से ये complete reaction है. This is your alkyl halide that react with the nucleophile, and then they convert into this types of substituted product, and during that process leaving group will leave out, right? इस process में leaving group निकल जाएगा. तो क्या होगा? attacking group जो होगा वो इस पर, ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड पर अटैक करेगा और उसके बाद प्रोडक्ट बनाएगा और साथ में लिविंग ग्रुप लीव आउट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल यू कैन सी, राइट? फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, राइट? यू कैन सी हियर इन फर्स्ट केस,
राइट। आपके पास क्या है, CH3Cl है, आपके पास क्या है, CH3Cl है, राइट। व्हेन CH3Cl रिएक्ट विद OH माइनस देन दे कन्वर्ट इनटू मिथेनॉल, राइट। नेक्स्ट क्या है आपके पास, आइडो मिथिप्रोपेन है, राइट। आइडोप्रोपेन व्हेन SH थायो अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है तो देन दे कन्वर्ट इनटू प्रोपाइल थायो अल्कोहल, राइट, एंड I माइनस विल रिमूव आउट, राइट। तो वैसे ही इथाइल ब्रोमाइड है, व्हेन दे रिएक्ट विद OCH3 देन दे कन्वर्ट इनटू this types of ether, right, and Br minus will remove, right. So this is general reaction, or this is general nucleophilic aromatic substitution reaction, right. Now these all are nucleophile. nucleophile क्यों है, देखिए नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद दिस ग्रुप, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन, इस ग्रुप के पास क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। नाउ आफ्टर दैट न्यूक्लियोफाइल, यू पीपल ऑलरेडी नो न्यूक्लियोफाइल आर मेनली टू टाइप्स। जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज, एक तो जिसके पास ऑलरेडी दिख रहा है कि इसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दैट इज नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, OH माइनस हो सकता है, फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, SH हो सकता है, फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, OCH3 माइनस हो सकता है। तो दीज ऑल आर नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो यहां पे देखिए NaOH dissociate into Na plus and OH minus, and then your OH minus behave like a negative charge nucleophile, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो यहां पे क्या होगा, Br will remove out with negative charge, Br रिमूव होगा नेगेटिव चार्ज के साथ, and then OH will attack at CH2 plus, right. तो CH2 plus पर ये अटैक करेगा, then they convert into this types of product, it is a alcohol, they convert into meth propanol, right, propanol में convert होगा and Na plus Br minus will remove out, right. तो ये तो है negative charge nucleophile के बारे में। now you can see here neutral, now you can see here neutral nucleophile। नेक्स्ट क्या है आपका, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है, जैसे क्या हो सकता है, अमीन, राइट, जहां पे क्या होगा, CH3 का होल थ्राइस n, बिकॉज यू पीपल ऑलरेडी नो एट नाइट्रोजन 1 lone pair of इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक lone pair of इलेक्ट्रॉन होता है, और इफ देयर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, आपको पता है एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। तो फिर क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के हैं और एक lone pair of इलेक्ट्रॉन है, इट मींस नाइट्रोजन के पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नाइट्रोजन के पास क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट आल्सो बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल समटाइम न्यूट्रल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल समटाइम क्या होते हैं, आप देखिए न्यूक्लियोफाइल समटाइम न्यूट्रल होते हैं और न्यूक्लियोफाइल समटाइम चार्ज होते हैं, या तो उनपे नेगेटिव चार्ज होगा या तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, राइट। अब देखिए ये N कहां पे अटैक करेगा, CH2 प्लस पे, एंड ये Br माइनस विल रिमूव आउट। तो Br माइनस इस तरह से रिमूव हो जाएगा और ये इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दिस इज आल्सो अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो समटाइम योर न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिव चार्ज आयन, or sometime your nucleophile is neutral, right. You can see these are some example. Now after the next point you can see about leaving group, एक और important group हो गया जिसका नाम क्या हो गया, leaving। leaving means निकलने वाला, right। एक तो अटैक करने वाला, that is important, right, and second leaving, right। तो leaving group भी important होता है, राइट। जो निकल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, अगर वो आराम से जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसको जाने में दिक्कत हो रही है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट। तो लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, जो इजीली चली जाए, राइट, जिसे जाने में कोई भी दिक्कत ना हो, और इफ देयर इज सम प्रॉब्लम देन the reaction cannot proceed, right। तो फिर रिएक्शन हो नहीं पाएगी। तो आप देखिए in comparison you can see here, right, you can see here in comparing two living group, the better living group is a weaker base, right। तो in comparing two living group, दो living group, अगर हम दो living group है हमारे पास, तो कौन सा better living group होगा, जो weak base होगा। अगर weak होगा तो less reactive होगा, अगर weak होगा तो फिर क्या होगा, less reactive होगा, और अगर less reactive होगा, और अगर क्या होगा
वीक होगा तो लेस रिएक्टिव होगा, और लेस रिएक्टिव होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि अगर उसे पता है कि वो स्टेबल है तो देन दे कैन इजिली मूव आउट, राइट, तो वो इजिली निकल जाएगा, राइट। तो इन कंपेयरिंग टू लिविंग ग्रुप द बेटर लिविंग ग्रुप इज अ वीकर बेस, राइट। तो अगर आप कंपेयर करते हो दो लिविंग ग्रुप की, तो उनमें से वो लिविंग ग्रुप बेटर होगा जो वीक होगा या जो वीक बेस होगा। तो नाउ यू कैन सी हियर RxNu minus convert into RNu, or X is a leaving group, right? So nucleophilic substitution occur leaving group that are weaker base, right? तो अगर आप H2O and OH की बात करते, if you compare H2O and OH, then which is better living group? Actually H2O is a better living group because that is a weak base. जो OH minus होता है वो strong base होता है, और जो H2O होता है वो weak base होता है। तो इसलिए ही क्या होता है, जब आपको OH को रिमूव करवाना है तो पहले आपको उसे H2O में कन्वर्ट करना पड़ता है ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में, राइट। तो इफ यू वांट रिमूव, राइट, अगर आप चाहते हो रिमूव करना चाहते हो विद इन ए 1 मिनट, राइट, द लिंक विल एक्सपायर, राइट, एंड वी विल रिज्वाइन एट सेम लिंक, राइट। हम सेम लिंक पे फिर से क्या करेंगे, रिज्वाइन करेंगे। तो विद इन ए मिनट, राइट, 1 मिनट के अंतर्गत लिंक एक्सपायर हो जाएगा, और जैसे लिंक एक्सपायर हो जाएगा बेटा तो फिर से हमने सेम लिंक पे क्या करना है, रिज्वाइन करना है, ठीक है ना। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, राइट। तो इस तरह से आप देखिए, राइट, जब कभी भी आपको H2O को रिमूव करना होता है, व्हेन यू वांट टू रिमूव